Hello viewers, and this is the single channel in which you will feel the fantasy of mathematics and the visualization which is the most important in mathematics to feel from the heart and soul, and that you will find in this channel. So without any further late, let's get to the topic of today. Now we wanna learn what is pi. So come back to our native language. So hello दोस्तों, दिस इज फैंटेसी ऑफ मैथमेटिक्स चैनल, जिस पे आप सीखेंगे ऐसा फीलिंग्स ऑफ मैथमेटिक्स, ऐसा फील्स मैजिकल कॉन्सेप्ट्स, जहाँ पर आप फील करेंगे कि जी हाँ, मैथमेटिक्स इज दिस सब्जेक्ट which we can feel from the heart and also could be our favorite subject of all of the subjects. So stay tuned with us and we are gonna learn what is the mystery behind pi. Yes, what you have heard is totally correct. Pi, this is pi. So what is this pi? What is this pi stands for? Many of you all have learned that 22/7 or 3.14159, that is the approximate value of pi, and pi is a constant in mathematics. But most of you all don't know that how this pi introduced in our world of mathematics. Okay, so then if you want to learn this mystical concept of pi, then you all will have to stay along with me to watch the full video of this mystery of behind the mystery of mathematics of pi. So learn this magical concept, stay tuned with me and let's go आगे. Hello दोस्तों, तो if you wanna learn this magical concept and this mystery behind maths, so you wanna learn this. What is mathematics? जो आज हम what we'll have to study today, जो हम आज पढ़ेंगे वो है what is pi in mathematics. तो pi mathematics में pi क्या है? Who is pi? मतलब what is pi? Who is pi? is totally the same thing we wanna learn. कौन है पाई, क्या है पाई, दोनों सेम बात है, जहां पर कि ये ज्यादा अप्रोप्रिएट है ना इससे ज्यादा. ओके, इट इज मोस्ट प्रेफरेबल देन दिस. फॉर व्हाट पाई स्टैंड्स फॉर. पाई किसके लिए स्टैंड करता है, मतलब पाई का मतलब क्या है, ये किस लिए यूज हुआ था, और हमारा मैथमेटिक्स के ये लविंग वर्ल्ड में इंट्रोड्यूस कैसे हुआ, पैदा किसने किया था, किसने इसको जन्म दिया था, उसका फादर कौन है, हु इज द फादर ऑफ पाई, एंड द बर्थडे ऑफ पाई इज 14th March 1:59 PM. जी हाँ, 14 मार्च को 1:59, ठीक 2 बजने से सिर्फ 1 मिनट आगे हम पालन करते हैं पाई डे. दिस इज बर्थडे ऑफ पाई, दैट मीन्स पाई डे, एंड दिस इज द मोस्ट loving day for the math lovers, pi day, and I also celebrate pi day with my own, because I was the lover of mathematics and I can feel this mathematics on my own. But I wanna share this concept of mystery of mathematics with you all, so that you can find this magical and so interesting. So let's go आगे. If you wanna learn this magical concept of pi, so stay tuned with me to watch the full video. If you are watching this video on YouTube or Instagram, so watch the full video clicking on the link in the description and go to the YouTube to watch the full video. So let's tune with us to watch the full video. Let's go आगे. दोस्तों, अगर आप बोले कि पाई क्या है भैया, तो पहले मैं बता देता हूँ कि what is pi, who is pi, for what pi stands for. इन दोनों सवाल का जवाब पाई है. एक यहाँ पर लिख नहीं रहा हूँ, स्क्रीन पे शो हो जाता है, ठीक है, यहाँ पर आपको मैजिक करवाने वाला हूँ और आपको मिल जाएगा. लो जी भैया, तो पाई क्या है? पाई इज अ ट्रांसेंडेंटल नंबर एंड a constant also, and it is so famous in mathematics that it can take so many different places after decimal points. Okay, it's a transcendental means such like pi, sine, cos, tan, cot, these are called transcendental when using this all trigonometric or others
tools of mathematics, we produce some equations, so that since pi is also transcendental and it is a constant number in mathematics and so famous, and the father of pi is, who is the father of pi? Father of pi is Archimedes, and father of pi, he introduced this pi using geometry. Archimedes find pi and he gives birth to pi. So the father of pi is Archimedes, and you have got it that who is father of pi. And he used geometry to give pi birth, and the value of pi by approximation, we all know that pi can be approximated by pi equals to 22/7 equals to, that also can be written as, I don't know most of you know this topic or not, it also can be represented as 355 divided by 113. yes, such that जैसे हम 22/7 से पाई को रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे ही 355/113 से भी रिप्रेजेंट करते हैं, और इसका भी वैल्यू जो आता है ना दोस्तों 3.14159 ऐसे रिपीट करता जाता है। और आपको ये रहस्यमयी ये पाई के बारे में एक चीज बता देता हूँ, पाई का जो डेसिमल के बाद ये जो रिपीट होता है ना डेसिमल के बाद, द डेसिमल नंबर्स ऑफ पाई आफ्टर, at first I wanna say pi is recorded as the most place taken after decimal points recorded. It is recorded, it has make a world record to be the highest number of decimal points after decimal, highest number of decimal points over 5 trillion, it has over 5 trillion of decimal points. So since this has lots of decimal points, and this is also over 5 million, over 5 trillion, sorry I am always saying million but it is trillion, over 5 trillion, it has over 5 trillion of number of digits after decimal points. So you can visualize how long it is, and most of the mathematicians give their soul and hard work in it to calculate them precisely, and obviously use of computer science, it has calculated over 5 trillion. ओके ये कैलकुलेट हुआ था 5 ट्रिलियन के ऊपर। लेकिन आपको एक चीज सब लोग बताते थे भी, लेकिन आज मैं विजुअलाइजेशन के, बिकॉज यू विल गेट ऑल द ट्रिक्स विजुअलाइजेशन कंसेप्ट इन दिस सिंगल चैनल। ओके तो अब मैं बताता हूँ कि, और पाई का बर्थडे ये क्या चीज़ है भैया, पाई का बर्थडे है, पाई का ये, क्योंकि हम क्या लिखते हैं, पाई का अप्रोक्सीमेट वैल्यू वो है 3.14159। इतना अगर हम डेसिमल के बाद 5 डिजिट याद रखते हैं तो ये देखो 3.14 की तरफ गौर करो, तो ये जो 14 है, 14 को हम डेट लेते हैं और 3 जो है वो मंथ है, तो 3 अगर मंथ है तो क्या होगा, जनवरी फरवरी मार्च, तो मार्च महीने के 14 तारीख, तो 14 मंथ मार्च, और 159 से 159 मतलब 1:59 पे हम पाई डे सेलिब्रेट करते हैं। तो ऑल द मैथ लवर्स, आई वांट्स टू ऑल यू द मैथ लवर्स to celebrate Pi Day on that time and that day if you can do it। okay तो सेलिब्रेट करना भैया पाई डे, हम मैथ लवर्स के लिए पाई डे एक ऐसा दिन है जहाँ पर हम उनके पाई को जन्म देने वाले आर्किमिडीज भाई साहब को और पाई को दोनों को सम्मान देते थे। तो मिस्ट्री ऑफ मैथमेटिक्स में सिर्फ इतना ही नहीं बच्चों, इतना ही नहीं, यहाँ पर विजुअलाइज भी होगा बच्चों। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि पाई का इंट्रोड्यूस कैसा हुआ, अगर पाई का इंट्रोड्यूस नहीं होता तो क्या होता हमारे जीवन में, लेट्स टेक सम टाइम फॉर मी, तो थोड़ा टाइम दीजिए। अगर आप विजुअलाइज करें हमारा जो गड्डी है, कार का जो चक्का है, कार का जो टायर है, या साइकिल का टायर, या आपके स्कूटर का टायर, वो क्या होता है, राउंड शेप होता है, वो क्या होता है, राउंड शेप होता है। This is also a type of circle, but it is not circle, it is the higher level of circle in 3D, that is sphere। okay but we don't wanna talk about this, we wanna learn what circle is।
सो सर्कल में क्या हुआ, अगर जो टायर है एकदम पूरा गोल होता है, अगर अगर आपका ये पाई को कोई अगर पाई का मिलता ही नहीं, अगर पाई जो कोई डिस्कवरी करता ही नहीं, तो बहुत बड़ा समस्या हो सकता था। आजकल जो गाड़ियाँ चलती है, साइकिल चलती है, मोटरसाइकिल चलती है, गोल गोल चक्के के साथ घूम 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 के रोटेशनल मोशन फिजिक्स का लगा के, वो नहीं हो सकता था बच्चों। यही है मैथमेटिक्स गुण, ठीक है। क्या होता था, हमारे आर्किमिडीज भाई साहब ने ज्योमेट्री का इस्तेमाल करके पहली बार पाई को इंट्रोड्यूस किया था। क्या किया था, लेट सपोज एक आपको सर्कल का तो शेप पता है, लेट सपोज मैं मैजिक कर रहा हूं, लेट सपोज दिस इज अ सर्कल, लेट सपोज दिस इज अ सर्कल, लेट सपोज दिस इज अ सर्कल, this is a circle, this is a circle, and the diameter of this circle is that. If we divide the whole circumference, if we divide the whole circumference divided by the diameter, if we divide whole circumference divided by the diameter of the circle, so we will what we will get as answer, that is pi, that is pi. If we divide the circumference of the circle divided by the diameter of the circle, then what we will have is pi, and that is 22/7 or 355 divided by 113 or 3.14159625, ऐसे चलता जाएगा ओवर 5 ट्रिलियन। बच्चों क्या ख्याल है, अगर अभी प्रॉब्लम क्या था, अगर पाई का इंट्रोड्यूस ना होता, पाई का इंट्रोड्यूस से हमें जो शेप होता है गोलाकार शेप, मान लो ये एक सर्कल है, इमेजिनेशन पावर का इस्तेमाल करो बच्चों, ड्राइंग बहुत खराब है। अगर ये पाई है, ये एक सर्कल है, तो इसका जो पूरा सरकमफेरेंस, सॉरी हाँ सरकमफेरेंस को अगर हम डिवाइड करते थे दिस डायमीटर से, अगर ये इस डायमीटर से, मान लो ये ए भी है और ये सरकमफेरेंस है, तो सरकमफेरेंस डिवाइडेड बाय द डायमीटर, ओके। सरकमफेरेंस को अगर डायमीटर से डिवाइड करते, जो हमें मिलता था वही है पाई, जहां पर हम इसको लिखते हैं 22/7, या इसको कैसे लिख सकते हैं 355 डिवाइडेड 113, या 3.141596252939 ऐसे चला जाता था। कौन कितना याद कर सकते हैं। और मैंने जो बोला ओवर 5 ट्रिलियन होता है, उसका थोड़ा सा अंदाजा तो आपको लगाना चाहिए। थोड़ा सा दिखा देता हूँ झलक कि पाई क्या है, झलक दिखला जा, ठीक है। उसके बाद बताता हूँ कि प्रॉब्लम क्या हो सकता था। अच्छा पहले बता देता हूँ कि पाई का क्या होता था ये में, उसके पहले ये क्या प्रॉब्लम होता था। मतलब इसको जानने के बाद हमें पता चला कि कोई भी एकदम परफेक्ट सर्कल शेप जो है, कोई भी एक एकदम परफेक्ट जो सर्कल शेप होता है, उसमें फीते से हम या कुछ टूल से माप के अगर सरकमफेरेंस को डिवाइड कर देते डायमीटर से, तो हमें अगर मिलता था 22/7 या दैट और दैट, तो हमें पता चलता था कि ये एक एग्जैक्ट सर्कल शेप है, ये एक एग्जैक्ट सर्कल शेप है, तब जब हमें सरकमफेरेंस डिवाइडेड बाय डायमीटर से पाई मिलता था। लेकिन जब नहीं मिलता था तो क्या हाथ फैला के बैठे रहो। तो ये जब मिलता था तब हमें सर्कल शेप के बारे में पता चला, ठीक है, पता चला, ठीक है। बिकॉज मैथ्स इज ऑल अबाउट कंसेप्ट एंड कंसेप्ट इज पावर बच्चों। तो उसके बाद प्रॉब्लम क्या आता था, अगर हमें ये पता ही नहीं था तो क्या होता। अगर लेट सपोज, फिर से विजुअलाइजेशन पावर, लेट सपोज आपके पास एक ऐसा सर्कल था, टायर का चक्का मान लो ऐसा, ठीक है। देखो ऐसा कोई आपके पास चक्का था, ऐसा कोई चक्का था, तो ये देखो पूरा सर्कल शेप नहीं है, कुछ ऐसा शेप है, ठीक है। अगर और ये अगर घूमता, जब ये घूमता, ऐसे घूमता रहता था, मानो ऐसे घूमता रहता था, टुटुंग टंग ऐसे घूमता रहता था। कैसे, ये क्या है, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? क्लॉकवाइज है ना, ये एंटी क्लॉकवाइज। अच्छा वो छोड़ो, अगर ये चक्का था और ये ऐसे घूमता था, ऐसे घूमता था, लेट सपोज दिस इज आवर सर्कल, जैसा भी हो, सर्कल नहीं, दिस इज आवर कर्व। तो ये जब ऐसे घूमता, ऐसे जब घूमता, तो ये घूमते 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 ये घुमा, ये टपक के गिर गया भैया, ठीक है। मतलब ये ऐसे घुमा, तो घूमते एक बार ऐसा हो जाएगा कि ये ऐसे घुमा ऐसे रोटेट यहाँ पर आ गया। उसके बाद अपेरेंटली यहाँ पर मानो ऐसे घूमते एक बार ढपाक से
ऐसे गिर जाएगा। तो गिर जाएगा क्या होगा, अगर ये एक गाड़ी का चक्का है या कोई भी आपका स्कूटर का टायर है तो ऐसे घुमा 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 भाग एंड बैंग और गिर गया सब यात्री हो, सब पैसेंजर्स, और क्या होगा, बैंग बैंग ही हो जाए, एकदम गोली मार देंगे, शूट कर देंगे आपको ड्राइवर को। क्या होगा, इसलिए ये शेप कैसा होना चाहिए एग्जैक्टली, कब होगा ये सर्कल शेप, क्योंकि ये ओवल शेप है, आपको कुछ कुछ को पता होगा, इलिप्टिकल शेप है। तो ये जब घूमता घूमता और गिर जाएगा ये प्रॉब्लम हो सकता है। इसलिए इसके शेप को परफेक्ट शेप देने के लिए इसको ऐसा किया था, एकदम पूरा सर्कल। अभी इसको ही हम रेक्टिफाई कर लेते हैं, इसको थोड़ा ऐसे ऐसे ऐसे, हाँ ये पूरा एकदम शेप बन गया। अभी इसमें सरकमफरेंस डिवाइडेड बाय डायमीटर करो तो आपको पाई मिल जाएगा। तो ये था पूरा पाई कैसे जनरेट हुआ, और अगर ना होता पाई तो क्या प्रॉब्लम हो सकता था। तो विजुअलाइजेशन प्लस कंसेप्ट प्लस फीलिंग्स प्लस विजुअलाइजेशन सब कुछ मिलेगा। अब इस वीडियो पे क्या नहीं मिला वो बताओ। अभी आप कुछ कुछ को मैजिक वाला चीज पता होना चाहिए, ओवर 5 ट्रिलियन निकाल सकते थे तो थोड़ा तो झलक दिखलाना पड़ेगा। तो फिर से मैजिक कर लेते हैं। मैजिक इज बिगिन। सो लो भैया, और ये है पाई का एक बहुत बड़ा सा, जिसी को भी इसको सीखना है तो सीख लो भैया। पॉइंट के बाद बहुत सारे हैं, पॉज करके स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। तो कैसा लगा वीडियो ये बताओ, कुछ मिस आउट हो गया है क्या। पाई क्या है, ट्रांसेंडेंटल एक जो कांस्टेंट है, ट्रांसेंडेंटल एक कांस्टेंट है, वो कांस्टेंट बहुत सारे रिपीटेड नंबर्स लिख सकते हैं डेसिमल पॉइंट के साथ। ओवर 5 ट्रिलियन लिया है, और वो भी बता देता हूँ 2010 में इसने रिकॉर्ड बना लिया, वर्ल्ड रिकॉर्ड इसने रिकॉर्ड बना लिया। किसका, सबसे ज्यादा डेसिमल पॉइंट्स वाला नंबर, ओवर 5 ट्रिलियन। और इसका जो आपका इजाद हुआ था, ये इसका फादर जो आर्किमिडीज भाई साहब है ना, उसने क्या किया था, इसको इजाद कैसे किया था, यूजिंग ज्योमेट्री कि सरकमफेरेंस डिवाइडेड बाय डायमीटर विल बी आवर पाई, सरकमफेरेंस डिवाइडेड डायमीटर विल बी आवर पाई। ये इंट्रोड्यूस किया था कैसे, यूजिंग ज्योमेट्री। इसको इस्तेमाल किया था कभी 1900 या 1900 बीसी में। ओके, 1900 बीसी में इसको इजाद किया था यूजिंग ज्योमेट्री। ठीक है, तो ये था इसके पीछे का पूरा लॉजिक, पूरा सब कुछ। ठीक है, बहुत सारे मैथमेटिशियंस ने अपने पूरा लाइफ लगा दिया सिर्फ इसको प्रेसाइजली कैलकुलेट करने के लिए। लेकिन एज यूजुअल इसको प्रेसाइजली कैलकुलेट करने का मतलब ये है, हम जहाँ पर भी इसका एप्लीकेशन करते हैं, कोई भी इक्वेशन, अभी सर्कल पर हो, मेजरमेंट पर हो, छोटे क्लासेस में जो आपका होता है मेंसुरेशन, या कोई भी आप कैलकुलस कर रहे हो, कुछ कहीं पर भी ये पाया जाए, पाई का वैल्यू हमेशा सेम ही होगा, 3.141596253929 ऐसे चलता जाएगा। तो ये आप कितना सीख सकते हो, ये मैंने दे दिया था, तो जितना चाहो सीख सकते हो। तो कैसा लगे ये वीडियो, कहीं पर भी ऐसा विजुअलाइजेशन, ऐसा कहीं कब प्रॉब्लम आएगा, कैसे जनरेट हुआ, किसने किया, कब किया, क्या है ये पूरा सब कुछ मिल गया भैया। और क्या चाहिए, बस यही एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे वो लोग जो यूट्यूब पे वीडियो बनाते थे हम और बोलते थे दिस इज़ द बेस्ट वीडियो दोस्तों एंड दिस विल गोना रिकॉर्ड ऑफ इन होल द यूट्यूब, तो उनको बता दो कि हम भी और भी लोग बचे हैं जो हमारे इस प्यारे से मैथमेटिक्स के लिए काम कर रहे हैं और सफल बनाएंगे एक दिन इस मैथमेटिक्स के जर्नी को। लवर्स ऑफ मैथमेटिक्स सबको बना के छोड़ेंगे, ज़बरदस्ती नहीं, प्यार ऑफ मैथमेटिक्स से, लव ऑफ मैथमेटिक्स से। तो कैसा लगा, अगर ये अच्छा लगा तो एक लाइक ठोक दो, तोड़ दो लाइक बटन को और शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा। हर लोग को दिखाओ कि मैथ्स में भी फील करने वाला चीज़ है, एंड दिस इज़ व्हाट मैथमेटिक्स स्टैंड्स फॉर। पाई क्या है सब कुछ समझ लिया आपने। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन पास के ऑल बेल आइकन को दबा के आप सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे नोटिफिकेशन हर रोज़ एकदम अपडेट करते तुरंत ही मिल जाए आपको। उससे और जो विजुअलाइजेशन ट्रिक और मिस्ट्री मैथमेटिक्स के पीछे और ज़्यादा गंभीर बहुत सारे मज़ेदार गल्प बोलेंगे, आपको स्टोरी सुनाएंगे, ट्रिक्स बताएंगे, सब कुछ बताएंगे। तो वो सीखने के लिए बने रहिए हमारे साथ, फॉलो करते रहिए, पढ़ाई करते रहिए घर पे बैठे। इस लॉकडाउन पीरियड में सबका ख्याल रखिए। तो आज के लिए इतना ही, सबका ख्याल रखिए, पढ़ाई करते रहिए। आज के लिए इतना ही, टेक केयर, हैव ए गुड डे, जय हिंद, जय भारत।